नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज 9वां आर्म्ड फोर्स रिटर्न डे मनाया जा रहा है और अखनूर में रक्षा मंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले, एक दिन पहले ही जो सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने बड़ा बयान दिया है, कश्मीर को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 80% सक्रिय आतंकवादी पाकिस्तानी है, यानी विदेशी आतंकवादी है। पाकिस्तान आतंकवाद का सेंटर है, इसमें नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वाकई में पाकिस्तान ही आतंकवाद की फैक्ट्री है। अभी घाटी में 80 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं, ये उनका कहना है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का स्टेटमेंट देना सेना दिवस से ठीक 2 दिन पहले अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। पहले हम बताते हैं कि क्या कहा जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, सेना अध्यक्ष है। Dwell upon few security issues and to begin with the northern borders. As you are aware, the situation is sensitive but stable. In October 2024, situation in Depsan and Demchok in eastern Ladakh got resolved. The patrolling to traditional areas in these two subsectors has commenced. Similarly, the traditional grazing has also commenced in these two areas. We shall continue to discuss the effective management of other sensitive areas also along the northern borders. And towards that end, I have authorized all my co-commanders to handle these issues at the ground level with respect to patrolling and grazing, so that these trivial issues can be resolved at the military level itself. Own deployment along LAC is balanced and robust. We are well poised to deal with any situation. A focused capability development for northern borders enables infusion of niche technology into a war-fighting system and a whole-of-nation approach. We are progressing well. हमारी प्राथमिकता है सभी एजेंसीज की सहभागिता, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना है। Coming on to J&K, situation is firmly under control. On line of control, ceasefire, which is effective from Feb 2021 after the DGMO's understanding, is holding on. However, the terror infrastructure across remains intact. Infiltration attempts continue, including from the IB sector or so many other avenues which are available, along with drone attempts to smuggle warlike stores and narcotics. In hinterland, in recent months, increased terrorist activities was seen in North Kashmir and Doda-Kishtwar belt. Our CT grid there has been reinvigorated and tempo of kinetic ops has been enhanced. Past year, 60% of terrorists eliminated were of Pakistan origin. As of today, whatever is remnant in the valleys and Jammu area, we feel that around 80% or more are from Pakistan origin. Overall, violence parameters under control, tourism, development activities, Amarnath Yatra, where we witnessed more than 5 lakh pilgrims this time, and peaceful conduct of elections are indicators to a positive change. तो दर्शकों, आपने देखा आर्मी चीफ उपेंद्र त्रिवेदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नार्को टेररिज्म के साथ टेररिज्म और नार्को टेररिज्म दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बड़ा कठिन तरीके से चुनौती बनी हुई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। क्रोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल संजीत सिरोही भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति की भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्रोड़ी सिंह जी, क्या वजह है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है? पाकिस्तान की माली हालत हमने देखा है बड़ी नासाज है, उसके बावजूद भी आतंकवाद को बढ़ावा देने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जी सिंह साहब। देखिए विनोद जी, हर मुल्क की अपनी एक तहजीब होती है जी, एक तारीख होती है, और उस तारीख और तहजीब से प्रभावित होकर वो अपने डिसीजन लेता है जी। पाकिस्तान का जिस तरह से जन्म हुआ वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को तोड़ के हुआ है और धर्म के नाम पे हुआ, और धर्म के नाम पे हुआ तो धर्म पाकिस्तान को एक देश का रूप नहीं दे पाया
और इसलिए 71 में पाकिस्तान के टुकड़े होके इस पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में इमर्ज हुआ। बिल्कुल। आज भी पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं कि 5 नेशनलिटीज का संगम है, अलग अलग, पंजाबी है, सिंधी है, मुहाजिर है, पख्तून है, बलूच है। तो पाकिस्तान एक राष्ट्र बन ही नहीं पाया और बनने का आधार इस्लाम और भारत विरोधी दृष्टिकोण रहा है और इसलिए इस्लाम अब वहाँ लगभग कमजोर होता लग रहा है। वहाँ का आवाम है वो इस्लाम के आधार पे वोट नहीं कर रहा है। पिछले चुनाव को देखें तो वो जमहूरियत चाहता है, लेकिन वहाँ की सेना और जो अतिवादी इस्लाम पसंद शक्तियां हैं वो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान को इस्लाम पसंद कंट्री के रूप में रखा जाए और भारत विरोध पाकिस्तान का एक आधार है पाकिस्तान की राष्ट्रीयता का, पाकिस्तान को एक साथ रखने का। जिस दिन भारत विरोधी दृष्टिकोण पाकिस्तान नहीं रखेगा, पाकिस्तान के एक नहीं 5 टुकड़े हो जाएंगे जी। क्योंकि पाकिस्तान कभी राष्ट्र बना ही नहीं जी। बलूच नेशन है वो सैकड़ों साल पुराना है, पख्तून नेशन है वो सैकड़ों साल पुराना है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की एक आंतरिक मजबूरी है कि वो भारत विरोधी स्थिति ले। इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं वो अपने हित की वजह से पाकिस्तान को समर्थन करते हैं, एनकरेज करते हैं, विशेष रूप से चीन। और जब शीत युद्ध का था तो अमेरिका ने पाकिस्तान को समर्थ बनाने की कोशिश की जिसमें वो अपने भारत विरोधी दृष्टिकोण को मजबूत कर सके। एक अन्य महत्वपूर्ण जो अभी हमारे सैन्य प्रमुख ने भी कहा, नारकोटिक्स की बात की, तो भारत एक दो के स्थितियों के बीच में सैंडविच है। भारत के ईस्ट में एक गोल्डन ट्रायंगल है जहां नारकोटिक्स ट्रेड और अंडरवर्ल्ड जन्म लेता है। दूसरी तरफ है पश्चिम की तरफ है, वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है गोल्डन क्रिस्टेंट। तो दोनों ही साइड में नारकोटिक ट्रेड है और जो अंडरवर्ल्ड एक्टिविटियां हैं वो टेररिज्म को और अधिक मजबूत बना देती हैं पाकिस्तान जैसे स्टेट के सपोर्ट से। तो ऐसी स्थिति में भारत अपने क्या मेजर्स ले, तो हमारे जो सेना प्रमुख ने बातें कही है वो बातें तो सही है। तो उन्होंने दोनों ही लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों को कवर किया है कि हमारी सेनाएं किस तरह से समर्थ है, किस तरह से अपने एक्टिविटी को कर्नल संजीव जी से जानना चाहते हैं। कर्नल संजीव जी से जानना चाहते हैं, कर्नल साहब ड्रोन ड्रॉपिंग की चर्चा की गई है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने हथियार भी ड्रॉप किए जा रहे हैं और नार्को भी यानी नशा भी ड्रॉप किया जा रहा है, यानी अभी भी उनका समर्थन सीमा के इस पार समर्थक है उनके। जब वो ड्रॉप करते हैं कोई उठाने वाला तो आता ही होगा। बिल्कुल विनोद जी, ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान की सारी गतिविधियां जो हैं वो भारत को डिस्टेबलाइज करने की है और आज से नहीं बहुत साल से वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हर बारी अपनी कोशिश से नाकाम रहा है। ड्रोन के जरिए हथियार डालना, ड्रोन के जरिए ड्रग्स डालना, ये उसकी पुरानी हरकत। और ये जम्मू कश्मीर में नहीं, ये पंजाब में भी यही हो रहा है। पंजाब में ड्रोन के थ्रू जो है ड्रग्स भेजा जाते हैं। आज पंजाब के जो युवक है वो जो है नशे में हैं। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान की हैं और ये इन्हीं गतिविधियों की वजह से आज पाकिस्तान जो है उस मुकाम पे पहुंच चुका है जहां पे उसको खाने के लाले ढाले पड़े हुए हैं। एक तरफ तालिबान खड़ा हुआ है, एक तरफ भारत, और बीच में वो सैंडविच हो गया है। वो अपनी तरफ से कोशिश बेशक कितना करे कि बांग्लादेश को मदद करे, बांग्लादेश को प्रॉप अप करे कि भारत को दोनों तरफ से घेरा जाए, लेकिन वो खुद ही घिर रहा है। तो ये जो सांप पालेगा तो सांप को थोड़ी पता है कि वो किसको काटेगा, तो वो तो अब सांप जो है पाकिस्तान में ही काट रहा है। विनोद जी जगदीप जी से जानना चाहेंगे। जगदीप जी, उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा है काफी संतुलित है। जी जगदीप जी। विनोद जी, आभार। आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। थोड़ा देरी से जुड़ा हूं तो जो विषय है उधर मुझे पता नहीं है कि आज एग्जैक्टली आप किसकी बात कर रहे हैं, केवल पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों की या चाइना भी इसके साथ जुड़ा है? वेल, चाइना को लेकर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। हाँ जी।
चाइना को लेकर के भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। देखिए, इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। जी, ठीक है, अगर हम सबसे पहले चाइना से ही देखते हैं, आपको पहले भी अनुरोध कर चुका और बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि तमाम रक्षा विशेषज्ञ या वो लोग जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी देश की रक्षा में दी है और कमांड किया है, बहुत बेहतर अनुभव रखते हैं, लेकिन जो बेसिक रैशनल बिहाइंड द होल स्टोरी, जब तक उस तक हम नहीं पहुंचेंगे, ना तो हम विषय को समझ पाएंगे और ना मुझे लगता है कि उस वास्तविक कारण तक हमारी पहुंच बनेगी। क्या चाहता है आखिर चाइना, क्यों उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है वो तमाम एरिया जिसे हम अपना गौरव मानते हैं, लेकिन वो बर्फीला रेगिस्तान है, ग्लेशियर से भरा है, कुदरत की बड़ी इनायत है। तो इसे जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो सेमीकंडक्टर इज द आंसर। आज चीन अपने साफ पानी से लगभग हाथ धो चुका है। 1963 में जब चंगस वैली पाकिस्तान ने और आपको ये चलिए, जगदीप जी के नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर मैं विदेश मामलों के जानकर क्रोड़ी सिंह जी से जानना चाहता हूं। हम कहते हैं कि हमारी विदेश नीति बड़ी सशक्त है, अब अपनी विदेश नीति के माध्यम से इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे पाकिस्तान पर। देखिए, भारत की विदेश नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि विश्व शांति, विश्व प्रगति को प्रमोट करना और सभी के साथ अच्छे दोस्ताना संबंध रखना जी। लेकिन इसमें हम भारत के हित को, राष्ट्र हित को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। तो भारत की विदेश नीति में प्रारंभ से ही जो दक्षिण के देश हैं, जो गरीब हैं, जिन पर उपनिवेशवादी शासन रहा, उनमें सुदृढ़ता लाने की और किसी भी तरह के साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी दृष्टिकोण का विरोध करने की रही है। दुनिया में जो संघर्ष हो रहा है उनमें भारत का जो न्यायपूर्ण की स्थिति है उसका समर्थन करने के लिए ये निरंतर रूप से चली आ रही है। तो निरंतरता में परिवर्तन जब होता है, जब विश्व व्यवस्था में और विभिन्न देशों के संबंध है उनमें कुछ चेंज होता है, तो स्वाभाविक रूप से भारत की विदेश नीति में कुछ परिवर्तन होता है। जहाँ तक चीन और पाकिस्तान के साथ है, भारत ने सदैव वार्ता से, डिप्लोमेसी से, डायलॉग से संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की। चीन में बॉर्डर को लेके लंबे समय से हमारी समस्या शुरू से ही, और उसके लिए 3 मैकेनिज्म भारत ने डिवाइस कर रखे हैं। एक तो कमांडर, कोर्पस कमांडर लेवल की बातचीत, उसमें बहुत से राउंड की बातचीत हो चुकी है, 21 राउंड की। दूसरी जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके अभी कुछ दिनों पहले ही चाइना के वांग यी और हमारे सुरक्षा सलाहकार के बीच में बातचीत हुई है। और तीसरी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन और कंसल्टेशन की मैकेनिज्म है। तो 3 ये स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है। निरंतर रूप से भारत एंगेज है सुधारने के लिए, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी सुधारेगी, वो एस्केलेट करने का प्रयास नहीं करेगी, तभी आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए हमारे सेना प्रमुख ने स्पष्ट कहा है कि चाइना के बॉर्डर पे जो स्थिति है वो सेंसिटिव है बट स्टेबल है। तो उन्होंने ये नहीं माना कि बिल्कुल नॉर्मल है। इसके साथ साथ कहा कि इसीलिए हमारा डिप्लॉयमेंट है वो बैलेंस्ड है और रोबस्ट है, कि हम किसी कमजोरी की स्थिति में नहीं है। और उन्होंने कहा कि छोटे मोटे इश्यू हैं वो कभी बहुत एस्केलेट हो जाते हैं। इसके लिए कोर्पस कमांडर को ऑटोनॉमी दी है कि आप ऐसे टर्सरी इश्यू हैं, आप अपने लेवल पे इनको रिजोल्व कीजिए। तो भारत बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। अगर हम कल के हमारे सेना प्रमुख के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, फिर हमारे रक्षा मंत्री को देखें, और कल होने वाला है आर्मी डे पे जो कुछ उन्होंने थीम दिया है, समर्थ भारत सशक्त सेना, तो भारत निरंतर रूप से अपनी सुरक्षा के प्रति सजग है। क्योंकि हर देश चाहेगा कि अपने आवाम की बहबूदी हो, हमारे बॉर्डर महफूज रहे। तो ये हर देश चाहता है। तो भारत की विदेश नीति भी इसी के लिए रही है। जी, कर्नल संजीव जी से जानना चाहूंगा कि अभी भी आतंकवादियों को अगर मदद मिल रही है लोकल लेवल पर, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हमारी एजेंसीज
ओवरग्राउंड वर्कर और टेररिज्म के बीच में, जो टेररिस्टों के बीच में नेटवर्क है, उसको तोड़ने में नाकाम रही है। जी नहीं विनोद जी, ऐसा नहीं है कि जी, नाकाम रही है। आपको टेररिस्ट की मेंटेलिटी और टेररिस्टों का किस तरीके से काम करते उसको जानना बहुत जरूरी है। टेररिस्टों का ये नहीं पता होता टेररिस्ट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि वो एक तरह का भूत है जी। तो उसको कहाँ पे है, वो किस तरीके से आएगा, ये पता करना बड़ा मुश्किल है। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, पर हाँ खास तौर पर जम्मू में क्या हुआ था पिछले 10-15 साल से, क्योंकि जम्मू में शांति थी, उसकी वजह से एक आप कॉम्प्लेसेंसी कह सकते हैं कि वो आ गई थी। कश्मीर में ऐसी कॉम्प्लेसेंसी नहीं थी। कश्मीर में पूरे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे वो सतर्क थे, जो इंटेलिजेंस थी वो पूरी सतर्क थी, तो इसलिए वहां पे पूरा का पूरा फोकस था। जम्मू में इतना फोकस नहीं था। अब जम्मू में क्या हुआ, क्योंकि फोकस हट गया, कुछ यूनिटें जब चाइना की से हमारी झड़प हुई गलवान में, उसके बाद कुछ यूनिटें जो है आर्मी यूनिट और सिक्योरिटी फोर्सेस की यूनिट को वहां से मूव करा दिया, जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट हो गया था। जी अभी क्या है, देश में देशद्रोही बाहर भी बैठे हैं, देशद्रोही देश के अंदर भी हैं। तो ये जो नेटवर्क है, जो देशद्रोही देश में बैठे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि अगर हम उनको टेररिस्ट मानते हैं जो सरहद पार से आते हैं, तो हमको उनको भी टेररिस्ट मानना चाहिए जो कि देश के अंदर बैठे हुए टेररिस्टों की मदद करते हैं, और उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई करनी चाहिए जो टेररिस्टों के खिलाफ होती है। अगर इस तरीके से गवर्नमेंट एक्शन लेगी और सिक्योरिटी फोर्सेज एक्शन लेंगे, तो लोग जो है यहाँ पे टेररिस्टों की मदद करने के से पहले 10 दफे सोचेंगे, और इससे जो है ये चीजें कम हो जाएंगी। विनोद जी, चलिए जगदीप जी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा है कि स्थिति जम्मू कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है, आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। विनोद जी, तकनीकी वजह से मैं बात रख नहीं पाया। अब मैं चाहूंगा कि बड़ा मेहरबानी थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, क्योंकि ये भारत चाइना और भारत पाकिस्तान जैसा ज्वलंत मुद्दा है। तो मैं बात चाइना से शुरू कर रहा था, तो मैंने बड़े कम शब्दों में आपको बताया कि असल वजह सेमीकंडक्टर है, जिसके लिए 10 लाख गैलन एक 30 सेंटीमीटर की चिप बनाने के लिए चाहिए, और ग्लेशियर्स के बिना वो संभव नहीं है। लिहाजा जो चाइना का पहला इंटरेस्ट लद्दाख में जो असल कारण है वो साफ पानी है। दूसरी बात, आप मुझे बताएं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने छाती ठोकर ये कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और उसके बाद आज स्थिति ये है कि 2 काउंटीज जो है हमारी जमीन पर चाइना बसा चुका है, और ये गृह मंत्रालय को और तमाम वो महकमे जो जुड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ, उनको आधिकारिक रूप पर ये मानना पड़ा। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये परिस्थितियां इतनी माकूल थी, चाइना हमारी हजारों किलोमीटर हमारी जमीन पर काबिज नहीं हुआ था, तो क्यों इतने दौर की लंबी वार्ता हुई? तो पहले तो इस सरकार से ये तवक्को बंद कर दीजिए कि वो आपको वास्तुस्थिति बताएगी। दूसरी बात, जो कारण है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब उसका माकूल हल ये है कि चाइना जैसी कंट्री का आर्थिक ताना बाना भारत पर बहुत हद तक में असर करता है। विनोद जी, अगर सरकार एक माकूल नीति बनाकर चाइना की आंख में आंख डालकर बोलती कि आप सलीके से रहिए, अन्यथा हमारे पास और भी जरिए हैं, जैसे एक मर्तबा कुछ एक उनके सोशल मीडिया को बंद किया था, तो चाइना जमीन पर आ गया था। अब हम आते हैं पाकिस्तान पर। ये ठीक है, यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी ठीक है कि आतंकी जो है उनका बड़ा अनसर्टेनिटी बनी रहती है, जैसे मेरे यहाँ पार्टिसिपेंट ने कहा कि वो भूत जैसी स्थिति में होते हैं, मान लिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो सुरक्षा ग्रिड बनाया गया था ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान, उसको बंद क्यों कर दिया गया? और अभी जो गलवान का जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि गलवान में जब झड़प हुई तो यहां से फौज को हटाया गया, लेकिन शायद ये हमने ध्यान नहीं दिया कि ये तब हुआ जब लिथियम को लेकर एक बड़ा खुलासा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया कि भारत में बहुत बड़ा कई हजार मीट्रिक टन का लिथियम का भंडार जो है वो मिला है। यहां से इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और ये वो असली वजूहात है जो आपको बहुत तेरे डिस्कशंस में सुनने को नहीं मिले। चलिए विनोद जी, एक आखिरी बात कहते हैं, मैं बात पूरी कर दूंगा। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे आला अफसर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत, बड़ी ईमानदारी, बड़ी शिद्दत से काम किया। हजारों में शहादतें हुई इस देश की, बच्चों ने जान दी, इस देश के बेटों ने जान दी। लेकिन जो लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे,
जिन लोगों का एक बड़ा इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में और बड़े फैसले लेने में एक बड़ा हाथ होता है, क्या वो समझते हैं कि मिलिटेंट ग्रुप्स कैसे काम करते हैं? क्या वो समझते हैं कि भाई अहले हदीस क्या है, देवबंदी क्या है, किस तरीके से इस्लामिक स्कूल्स बटे हुए हैं, किस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका क्या है, कहां से ओवरग्राउंड वर्कर्स के लिए पैसा आता है, नार्कोटिक्स की उसमें कितनी भूमिका है, और इसके साथ साथ लिटरेचर से लेकर वो तमाम चीजें जो आतंकवाद पर परोक्ष रूप से। क्रोड़ी सिंह जी से जानना चाहूंगा, विदेश मामलों के जानकार हैं क्रोड़ी सिंह जी। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीप सिंह ने इनकर्शन को लेकर के कहा कि चाइनीज लोग अंदर आ चुके हैं और प्रधानमंत्री क्या है कि कोई कह रहे हैं कि कोई अंदर नहीं आया, कोई बाहर नहीं गया, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? समय कम है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस समय कहा था वो उस समय का था जब देश में राजनीतिक माहौल बहुत गर्म था और ये कह रहे थे कि चाइना ने इनकर्जन किया है जी। शायद उस समय रिपोर्ट ये थी कि चाइना ने इनकर्जन नहीं हुआ है, चाइना ने जमीन पे नियंत्रण नहीं किया है, सेना में झड़प हुई है। तो उसके बेसिस पे प्रधानमंत्री ने कहा, उसके बाद था कि ऐसा नहीं कहा है। वो निरंतर रूप से चाइना से डायलॉग बनाए हुए हैं और हमारी जो डोमेस्टिक लेवल पे सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस कमिटीज हैं उनकी निरंतर रूप से बातचीत हो रही है, इनपुट जनरेट हो रहे हैं। अगर चाइना ने इंक्लूजन किया तो निश्चित रूप से जो हमारी स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है जिनके थ्रू चाइना से डायलॉग चल रहा है, निश्चित रूप से ये इश्यू उठा होगा। जब हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ने बात की, वर्किंग मैकेनिज्म और कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन की बातचीत हुई और कमांडर्स के लेवल पे बात हुई, तो निश्चित रूप से ये इश्यू उठा होगा। अगर ये वास्तव में चाइना के नियंत्रण में अभी भी कुछ है, तो जब तक चाइना का नियंत्रण नहीं हटेगा, रिलेशंस नॉर्मल हो नहीं सकते, बातचीत आगे बढ़ नहीं सकती। तो निश्चित रूप से सरकार के लेवल पे भी कोशिश हो रही होगी और हमारी सेना तो निश्चित रूप से प्रोएक्टिव है और हमारे बॉर्डर पूर्णतः महफूज है। मुझे नहीं लगता कि सेना इतनी कमजोर है कि कोई भी देश इनकर्जन आसानी से करेगा और भारत की जमीन पे अपना कब्जा जमा लेगा। तो हमारी सेनाओं को हम इतना कमजोर नहीं मान सकते। तो हमारे बॉर्डर तो पूर्णतः महफूज है और हमारी नीति है वो युद्ध की कहीं भी नहीं रही, आज भी नहीं है और पहले भी नहीं थी। कंटिन्यूस डायलॉग हम चाहते हैं, संवाद होता रहे और कूटनीति के द्वारा अगर कोई समस्या है तो समाधान किया जाए। समय इजाजत नहीं दे रहा है। क्रोड़ी सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल संजीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।